Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce, session number 6 of controlling the last function of the management. In last 2 or 3 sessions I started and gave the information related to the characteristics and also the importance of the controlling. In last session we completed that 11 different importance of the controlling. It is very important, there must be a controlling in the unit. It will give better results to complete and fulfill our plan. Now the next point, that is related to the relation between planning and controlling. Planning is the first stage, controlling is the last stage. So how both the stages are related with each other. Okay, when you will plan, you have to think about the controlling will complete it, then after once again the cycle will start and planning will also start. The simple thing here is that how both are related with each other. In 2 or 3 marks, this type of the questions related to the relations are there. So many different lines are there, sentences are there that will be asked, or maybe it will ask in the examination, and some of them also it was asked in past examination. So let us start with the relationship between the first and the last stage. Planning refers, what is the planning? You know that one. So planning refers to a systematic and intellectual program. So here you have to set one systematic program, and also looking around that program you have to think about the intellectual program. So it's a planning, it's a referring, or it will refer the systematic and one intellectual program to achieve the objectives or goals. For our industries, our organization must be, one unit is there, small or big unit is there, must be objectives are at the first, and that objectives must be achieved in a systematic way, in an intellectual way. उसको सीधी तरीके से हम अचीव करने जाएंगे तो मे बी विल नॉट गेट अ बेटर रिजल्ट्स, राइट. तो ऐसा भी नहीं है तो उसको ट्विस्ट करके हमको अचीव करना है, लेकिन वी आर लुकिंग अराउंड द पर्टिकुलर सिस्टम, राइट. सो दैट इज द प्लानिंग. इट विल रिफर द डिफरेंट थिंग्स. Also planning clarifies the goals behind future activities. The planning is uncertain, you know that one, and whenever you will make any type of the planning, it is not 100% sure, though it is precise, but as per the planning is related to the future, and future is uncertain, that's why we can say planning is uncertain sometimes, right? But future is uncertain, that's why maybe the planning will not able to give a better result. But planning clarifies the goal behind the future activities. So you can decrease some of the problems which will arise in future through the planning. You can reduce that one. You can't directly remove that one, but you can reduce the different types of the problems which will arise. So simply planning clarifies the goals behind the फ्यूचर एक्टिविटीज. आपको फ्यूचर में क्या करना है वो प्लानिंग की तरह से और प्लानिंग की वजह से आप अचीव कर सकोगे. ऑल्सो प्लानिंग इज देयर एंड इट विल क्रिएट आउटलाइन और प्लान ऑफ विच एक्टिविटीज आर to be undertaken. So planning will give the outline regarding whatever the work is there, right? It will give the outline of which activities are to be undertaken. कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है उसकी आउटलाइन देगा. उसके बाद when कब करना है, and in how much time, कितने टाइम में उसको खत्म करना है, and they are to be completed. And also for that what resources are required. जो प्लानिंग किया है, जो काम कितने टाइम में खत्म करना है, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, right? So that goals can be achieved. So planning is nothing. First of all, decide what activities you want to do, when you want to do, when you want to complete that one, and which type of the resource are needed or which type of the resource will require, right? तो यहाँ पर सिंपल है, प्लानिंग आप करना चाहते हो तो उसकी पहले आउटलाइन डिसाइड करो. आपको कोई एग्जांपल है तो आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल बेंगलोर, तो डिसाइड करो कौन से रूट से जाना है, बाय रोड, बाय रेल, बाय प्लेन, डिसाइड करो. तो एक आउटलाइन डिसाइड करो. उसके बाद क्या करना है, तो उसकी एक एक्टिविटी है, किस लिए मीटिंग में जाना है, वॉट एवर, राइट. ये एक सिंपल एग्जांपल है, तो डिसाइड करो, इट इज अंडरटेकन. देन आफ्टर कब जाना है, व्हेन, राइट, इन हाउ मच टाइम, राइट, कितने टाइम में आपको वहां पहुंचना है. अगर आपको विदिन 1 डे आपको पहुंचना है तो रेलवे नहीं कम लगेगा, राइट. मे बी मोर देन 18 और 36 आवर्स लगते हैं रेलवे में, तो राइट. और समटाइम्स सी इट विल टेक मोर टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन द बस और अदर थिंग्स आर देयर. तो यू कैन चूज द पर्टिकुलर एप. सो इन हाउ मच टाइम दे आर टू बी कंप्लीटेड, कब तक पहुंचना है, ये तो
वर्क नहीं है, कोई एक एक्टिविटी है, सो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट करनी है, पहुंचना है। और फॉर दैट व्हाट रिसोर्सेज आर टू बी रिक्वायर्ड, और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए आपकी तरफ से। प्रोडक्ट होगी तो हम सोचेंगे कि रॉ मटेरियल चाहिए वो वगैरह, लेकिन हमको वहीं जाना है वहाँ पर, तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए डिफरेंट। सो इट गोल्स कैन बी अचीव और इट कैन बी अचीव। तो कोई प्रोडक्ट का भी ले सकते हो राइट, फॉर एग्जाम्पल घड़ी, वॉच राइट, तो उसको हिसाब से आप डिसाइड करो कौन सी घड़ी बनानी है, कैसी घड़ी बनानी है, कौन सा शेप बनाना है, कब तक बनाना है, कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो सब, तो तभी आपके गोल अचीव होगी। कोई एक कॉमन एग्जांपल लेके आप उसको रख सकते हो। सो दैट इज द प्लानिंग। नाउ कंट्रोल क्या है, शुरुआत की अब तक हमने सब कुछ देख लिया कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग थोड़ा डिफिकल्ट थिंग है राइट, अगर प्लानिंग ठीक तरह से नहीं हुआ तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगा। तो कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू मॉनिटर और लुकिंग आफ्टर वेदर बिजनेस एक्टिविटीज आर carried out according to the plan. So simple controlling is nothing, it's a one thing, whatever you decide as per planning, the work is done or work is carried out and the basis of their planning or not, right? So simply it's a process to monitor whether the business activities, the business related things are carried out according to the plan. प्लान के हिसाब से सब कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपने जो डिसाइड किया था बेंगलोर जाने का, वो घड़ी के हिसाब से वो ठीक तरीके से टाइम टू टाइम जा रहा है। अगर वो एग्जांपल है वॉच का, तो टाइम टू टाइम वो प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, व्हाटएवर, तो उसके हिसाब से प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। देन आफ्टर व्हाटएवर द स्टैंडर्ड्स आर सेट स्टैंडर्ड्स आर देयर राइट। वो मैंने एक एग्जांपल चौक का दिया था आपको राइट, सेट स्टैंडर्ड था कि किसी भी जगह होल नहीं होने चाहिए राइट, तो वो चौक का एग्जांपल याद रखो। तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सेट किया था, तो वो हो रहा है। एंड ऑल्सो गिवन इंस्ट्रक्शंस, व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शंस वर गिवन एट दैट टाइम, उसके हिसाब से काम हो रहा है। एंड इफ वेरिएशंस, कोई डिफरेंसेस आएंगे राइट, आर फाउंड, द करेक्टिव एक्शंस आर टेकन if the different type of the things are there, right? Sometimes corrective actions are required if deviations are find out, right? तो अगर ये सबको ध्यान पर रखना है तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर, क्योंकि प्लानिंग करना ही पड़ेगा तभी काम शुरू होगा, कंट्रोलिंग करना ही पड़ेगा तभी काम खत्म होगा, right? So planning and controlling are going together, right? They are maybe we can say it's a part of the different type of the management functions, though first and last. So whenever there is a planning, there is a controlling, जहाँ प्लानिंग है वहाँ कंट्रोलिंग होगा। एंड कन्वर्सली whenever there is controlling, planning pre-exist। तो यू नो दैट वन, जहाँ पर प्लानिंग है कंट्रोलिंग होगा ही होगा, और जहाँ कंट्रोलिंग है प्लानिंग तो पहले से ही मौजूद है। So whenever the planning is there, controlling must be there. Whenever controlling is there, planning pre-exist, उसका existence पहले से होगा, तो उसका प्लानिंग पहले से किया होगा। सो दैट इज द सिंपल टाइप ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर। एंड अनदर लास्ट सेंटेंस रिगार्डिंग दिस इंट्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। ये सेंटेंस पूछा जाए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर ये सेंटेंस पूछा जाए प्लानिंग प्री एग्जिट है तो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। You can easily write down this into 3 marks, right? Some of the other sentences are there, one by one I will start with the information. The first one, here are the relation number first. There are 4 different relations between the planning and controlling. The first relation is here, planning and controlling are 2 sides of the same coin. एक सिक्के की 2 बाजुएं हैं। कई बार 2 और 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, into inverted comma, explain the statement. So you have to give the explanation this one. Let us start with that, 2 sides of the same coin. Planning and controlling are 2 very important, right, and also interdependent function of the management process. That means management process start होता है प्लानिंग से और खत्म होता है कंट्रोलिंग से। ये रिपीटेटिव थिंग है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ द पॉइंट्स, बोथ द फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, एक के वजह से दूसरा चला जाएगा, दूसरे की वजह से पहला चला जाएगा। दैट इज नॉट थिंग, उसको ध्यान में ले लेना है। एक है तो दूसरा होगा, सेकेंड वन इज द फर्स्ट वन ऑलरेडी देयर, तो उसका एग्जिस्टेंस है, इट इज प्री एग्जिस्ट। So keep in mind these functions, right? Planning is very important, and along with that, controlling is also part. So the success of planning depends on controlling. ये भी sentence आता है,
राइट, एग्जामिनेशन में तो भी आपको यही रखना है, लिखना है। तो द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग, जब जब प्लानिंग होता है राइट, कंट्रोलिंग होना ही होना है, तो प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड है, कंट्रोलिंग के ऊपर। सक्सेस प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड है, कंट्रोलिंग के ऊपर। ऑल्सो कंट्रोलिंग फाइंड आउट द डेविएशंस, रिपीटेड थिंग यहाँ भी हमने देख लिया है। सो सिंपली कंट्रोलिंग फाइंड आउट, इट विल मोस्टली फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेविएशंस, सम ऑफ द डिफरेंसेस आर देयर, सो इट विल नॉट फाइंड आउट थ्रू द प्लानिंग, स्टाफिंग और अदर फंक्शंस। उसके हिसाब से आप नहीं ढूंढ सकोगे, उसके हिसाब से आप काम ठीक तरीके से करवा सकोगे, राइट। यू कैन मेक द वर्क इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट the deviations you have to take the benefit, or there must be a control. So find out the deviations, also takes necessary corrective actions if required. अगर कोई प्रॉब्लम होता है, डेविएशंस फाइंड आउट होता है, डिफरेंसेस निकलता है, तो उसको करेक्टिव करना चाहिए। करेक्टिव एक्शंस विल बी टेकन बाय द मैनेजमेंट एंड समटाइम्स आल्सो इन बिजनेस एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। तो क्या होता है, कंट्रोलिंग डेविएशंस फाइंड आउट करना है, उसको करेक्टिव करना है, एंड ऑल्सो दिस कंट्रोलिंग टेक्स बिजनेस एक्टिविटी इन अ प्रॉपर एंड इन अ राइट डायरेक्शन, राइट। कई बार कंप्लीटली वर्क जा रहा होता है लेकिन कंट्रोलिंग नहीं होता है, तो कई तरीके से काम बंद हो जाता है, तो वहाँ कंट्रोलिंग की शायद कमी होती है, वी कैन से दैट। कंट्रोलिंग नहीं होता है ऐसा तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन शायद कंट्रोलिंग कम होता है, तो इट इज नॉट इन राइट वे, तो उसको राइट वे में लाने का काम करता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, राइट, ये भी एक सेंटेंस है, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग है, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग का एक्सिस्टेंस नहीं होगा, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग होगा ही होगा। कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, दिस इज बिकॉज, ये अगर सेंटेंस आता है तो 2 मार्क में आपको यही लिखना है। तो क्या होगा अगर कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, but if the controlling is there, right, so what is the work of the planning? So this is because, right, through controlling it can be ascertained whether the objectives of planning are achieved or not. So we can say controlling also not possible without planning. This is because through controlling की वजह से क्या होगा, it can be ascertained, you can decide whether the objectives of planning are achieved or not. अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो आपका प्लानिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव है, whatever you decided that achievement of objectives will not be achieved, right? So because of controlling it should be achieved. So where there is no planning there is no need of controlling. प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग की क्या जरूरत है, so where there is no planning there is no need of controlling. Thus planning and controlling are two sides of same coin. So दोनों एक सिक्के की दो बाजू है। जहां से हमने शुरुआत की, that is the end of the first relation between planning and controlling. So this is the information related to both, right? Some of the basic information. अगर कोई सेंटेंस आता है, मैंने बोला यहाँ से ऊपर तक लिखने का, अगर ये सेंटेंस आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, in the inverted comma the particular statement उसको explanation देना है, तो you have to do this one, ये आएगा तब भी, right? और दूसरा yes this one 2 मार्क में आएगा, तो ये लिखना है 3 और 4 lines. So that is the end of the first relation. Now I will start, means from next session I will start 2, 3 and 4, then after the stages. Thank you.